Okay, so let's start with functions. Now I already seen function can be expressed in this form f from a to b. So it is a function from set A to set B. ठीक, और it can also be expressed as function from A to B. इस तरीके से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं. Graphically it is shown like this. This is set A, this is set B. Set A contains an element, let us say x. Set B contains an element y, where y is a function of x. So it is read as y is equal to f of x. Now, sometimes you will see that it is written like real valued function. अब real valued function क्या होता है? Real valued function means set A as well as set B both belongs to the set of real numbers. ठीक है, both belongs to the set of real numbers. It means set A and B are subset of real numbers. So that's why it is called as a real valued function. We already know domain, range and codomain. Domain is denoted by df, range by rf and codomain by cf. Notice domain df is nothing but all possible values of x for which f of x is defined. ठीक है, जिस वैल्यूज के लिए f of x डिफाइंड होगा that is called as df. Then what is range? All possible values of y for this x. मतलब in this particular domain x की जो भी वैल्यूज है डोमेन में उन सब वैल्यूज के लिए जो वैल्यूज आपको y की मिलेगी it is nothing but it is range. And codomain is nothing but complete set B. Function is defined from A to B, so this set B is codomain. So obviously range is a subset of codomain. ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें कुछ चीजें मालूम है. Now let us see algebra of function. हमने already discuss किया हुआ है. Addition, subtraction, multiplication, division of functions is possible. अब ये जानना जरूरी है कि अगर दो फंक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन करते या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन तो उनका डोमेन क्या होगा. ऑलरेडी मुझे एफ ऑफ एस का डोमेन मालूम है डीएफ, जी ऑफ एस का डोमेन मालूम है डीजी. तो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी तो उस नए फंक्शन का मतलब आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस टू फंक्शंस व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज डीएफ इंटरसेक्शन डीजी. दोनों का कॉमन जो रहेगा दैट इज डोमेन ऑफ द न्यू फंक्शन. सिमिलरली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आल्सो डोमेन इज डीएफ इंटरसेक्शन डीजी. बट इन केस ऑफ डिवीजन domain is df intersection dg, that is fine, but minus set of x such that g of x equal to 0. तो डिवीजन वाले केस में क्या होगा, जो डिवीजन वाला फंक्शन आया है नया f of x अपन g of x, इसका डोमेन हो जाएगा df इंटरसेक्शन dg. बट इसमें से हमें ऐसे x हटा देने हैं, ऐसे x हटा देने हैं जहां पर कि डिनोमिनेटर 0 होता हो. ठीक. Similarly, in case of under root f of x, domain is what? It is df, मतलब f of x का जो भी डोमेन होगा इंटरसेक्शन हम करेंगे किसके साथ? सेट ऑफ x such that f of x is greater than or equal to 0. तो f of x का डोमेन तो हमने यहाँ पर ले लिया df, उसका जो भी डोमेन होगा और फिर इंटरसेक्शन करना है सेट ऑफ x such that f of x is greater than or equal to 0. अगर मान लीजिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन है फंक्शन का मतलब k इंटू एफ ऑफ एक्स, तो उसका डोमेन हो जाएगा df, मतलब जो एफ ऑफ एक्स का डोमेन है वही डोमेन k इंटू एफ ऑफ एक्स का रहेगा. ठीक. अगर एफ ऑफ एक्स का डोमेन मान लीजिए माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मतलब ऑल द रियल नंबर्स है, तो 5 इंटू एफ ऑफ एक्स का डोमेन भी ऑल द रियल नंबर्स होगा. सो दिस इज अबाउट डोमेन एंड रेंज. Now let us see different types of functions. So first one is one function. अब हमें मालूम है one function कैसे डिफाइन होता है. one function means one element from set A is connected to only one element of set B. So one is connected to one, that is one. ठीक. And it can be checked using this technique. If f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2,
then it is a 1-1 function. This 1-1 function is also called as injective mapping or an injection, ठीक है, और मोनोमॉर्फिज्म. तो ये नए वर्ड से ध्यान में रखिएगा. 1-1 means injective or monomorphism. That is nothing but 1-1. Now f of x is 1-1 if it is either increasing or decreasing function. ठीक है, तो f of x 1-1 कब कहलाता है? जब या तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. अब आप बोलेंगे सर ये तो कुछ नई चीज है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? सो जस्ट एक सिंपल आप समझिए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरीके से होते हैं. ठीक, मान लीजिए यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है. कोई भी ऐसा फंक्शन जो इस तरीके से जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? फंक्शन इज increasing. This is called as a increasing function. X is increasing at the same time y is also increasing. Then this is called as a increasing function. और decreasing function कौन सा होता है? इस टाइप में. X is increasing but y is decreasing. Then this type of function is called as decreasing function. ग्राफ अगर आप देखेंगे, this is increasing, this is decreasing function. तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब कि फंक्शन 1-1 है. ठीक, तो एक तो आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं. दूसरी क्या टेक्निक है? दूसरी टेक्निक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. तो इसमें जो ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है? y इज इक्वल टू f ऑफ x. ठीक है, इस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो, मतलब कि dy by dx, और वो ग्रेटर देन 0 आता है, देन इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. डेरिवेटिव कैसे निकालना सीखेंगे हम डेरिवेटिव चैप्टर में, बट सिंपल कंसेप्ट है. अगर dy by dx ग्रेटर देन 0 आता है, देन इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. और अगर dy by dx आपका लेस देन 0 आएगा, देन इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन. सिमिलर, जैसे आप कॉलेज पे अगर जाएंगे, कॉलेज पे तो आप ऊपर चढ़ते जाएंगे तो कौन सा हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन. उधर से नीचे जब आएंगे तब डिक्रीजिंग फंक्शन. अब आप बोलेंगे सर हम ऊपर तो चढ़ गए, चलिए इंक्रीजिंग हो गया, नीचे भी आ गए, ठीक है, डिक्रीजिंग हो गया. अब जब हम कॉलेज पर जो टेबल टॉप है ऊपर जब घूमेंगे तो वहां पर क्या होगा? वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, ठीक है, वहां पर क्या होगा? तो वहां पर ऑब्वियसली फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ठीक है. ऊपर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एज टेबल टॉप. ठीक है, टेबल टॉप मतलब वहां पर आपको इस टाइप से फंक्शन दिखेगा, स्ट्रेट. ठीक है, और इस स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? अगर इधर ग्रेटर देन 0 था, अगर इधर लेस देन 0 था, तो इक्वल टू बच गया ना. तो यहां पर हो जाएगा आपका dy by dx इक्वल टू 0. डेरिवेटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेरिवेटिव का. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. ठीक है, ये तो हुआ टेबल टॉप. अब ऐसे कांस्टेंट नीचे भी तो हो सकता है ना, दिस इज ग्राउंड लेवल. आप बोलेंगे सर हम जैसे ऊपर चढ़ के गए तो यहाँ पर हमें टेबल टॉप मिल गया, तो जैसे हम नीचे उतर के आए तो हमारे पास फिर ग्राउंड लेवल आ गया, वो भी तो ग्राउंड लेवल पे ऐसा ही होगा. हियर आल्सो dy by dx इक्वल टू 0. और इसलिए हमने मतलब डेरिवेटिव के फार्मूले भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है, जस्ट समझने की कोशिश करें. डेरिवेटिव के फार्मूले हमने थोड़े बहुत डिस्कस कर लिए. हमने एक चीज बोला था, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0. डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0. तो जब जहां पर स्लोप नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे स्लोप है ऊपर चढ़ने वाला, यहाँ पर स्लोप है नीचे उतरने वाला, यहाँ पर स्लोप नहीं है, मतलब हियर द फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट. ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ कोरोना, हम डेली वही देखते हैं ना कि जलगांव में कितने पेशेंट्स आए, कितने पेशेंट्स आए. चलिए कहीं पर स्टैगर हो गए तो वहां पर हो जाएगा कांस्टेंट. देयर इज नो चेंज. कल भी 10 थे, आज भी 10 है, परसों भी 10 है, उसके बाद भी अगर 10 है, so we say that there is no change.
इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट एट ए सर्टेन लेवल, तो वहां पर रेट ऑफ चेंज नहीं आया। और डेरिवेटिव मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने बोला है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक, तो टेबल टॉप पर होगा, ग्राउंड लेवल पर होगा, इंक्रीजिंग होगा, तो इसका मतलब ये स्लोप है इंक्रीजिंग, डिवाइड बाय डेस ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग मतलब डिवाइड बाय डेस लेस देन 0। एक कंसेप्ट हमने और पढ़ा था। स्लोप क्या होता है? स्लोप इज नथिंग बट डिवाइड बाय dx। ठीक है, तो इधर स्लोप पॉजिटिव है, ऊपर चढ़ रहे हैं हम कॉलेज पर, इधर स्लोप निगेटिव है, नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्लोप ही नहीं है, सीधे सीधे जा रहा है। ठीक, देयर इज नो स्लोप, इट मींस इट इज 0। सो दैट इज द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जरूरी है हमारे लिए। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 1 फंक्शन होगा तो इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। अब बात करते हैं ऑनटू फंक्शन की। ऑनटू फंक्शन मतलब क्या? रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। रेंज और कोडोमेन दोनों अगर सेम होंगे देन इट इज कॉल्ड एज ए ऑनटू फंक्शन। मतलब सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स है सारे अगर कवर होते होंगे आपके रेंज में, देन इट इज कॉल्ड एज ए ऑनटू फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव मैपिंग। जैसे ये था इंजेक्टिव मैपिंग मतलब 1-1, वैसे सर्जेक्टिव मैपिंग मतलब ऑनटू। ठीक, और सर्जेक्शन। सो दिस इज ऑनटू फंक्शन। अब एक होता है बाइजेक्शन। ठीक है, बाइजेक्शन, या फिर हम बोलेंगे बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मीन्स बाय मीन्स टू। ठीक है, बाय मीन्स टू। तो बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो हो जाएगा बाइजेक्टिव। सर्जराव भी है, इंजेक्राव भी है, तो हो जाएगा बाजीराव। पूछ रहे आप ध्यान रख सकते। बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में 1-1 भी है, ऑन-टू भी है, तो हो जाएगा 1-1 ऑन-टू, मतलब कि बाइजेक्टिव, बाइजेक्शन। दैट इज नथिंग बट इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, दोनों चीजें। तो 1-1 ऑन-टू अगर होता है तो हमें एक चीज और मालूम है, कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब वो फंक्शन 1-1 ऑन-टू होता है। तो हम बोलेंगे कि दिस टाइप ऑफ फंक्शन हैज ए इनवर्स, अदरवाइज इनवर्स नहीं होता है। तो ये तो था बाइजेक्टिव। अब मेनी वन कौन होगा? जो 1-1 नहीं होगा, वो हो जाएगा मेनी वन। सो मेनी वन इज नॉट 1-1। मेनी वन में क्या होता है कि सेट ए के 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट होते हैं एक ही एलिमेंट के साथ बी में, देन इट इज कॉल्ड एज ए मेनी वन। ठीक, अब ये मेनी वन फंक्शन कौन सा होगा? आइदर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा इट विल बी मेनी वन। हमने 1-1 में क्या देखा? 1-1 में देखा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या तो फिर डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस टाइप का फंक्शन है। और ये जो मेनी वन फंक्शन होता है ये इंक्रीजिंग नहीं होगा, ये डिक्रीजिंग नहीं होगा। इट मींस इट विल हैव आइदर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, देन इट इज कॉल्ड एज ए मेनी वन फंक्शन। अब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्या होता है? देखिए मैंने 2 अलग अलग ग्राफ निकाले, इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग का। होपफुली आपने इसे लिख लिया होगा। ठीक, अब हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम समझते हैं क्या होता है। जो मैंने ग्राउंड लेवल एज इट इज रहने दिया, बोले इसका जो टेबल टॉप है उसे भी एज इट इज रहने दिया। ठीक, अब लोकल मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है? मान लीजिए कोई भी ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इस फंक्शन का जो ग्राफ है इस टाइप से है। ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से है। जरूर नहीं, साइन वेव नहीं है, साइन वेव जैसा दिख रहा है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि साइन वेव ही होना चाहिए। ये और भी कुछ ऐसा वेव होगा जो ऊपर जाता भी, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। क्योंकि हमने 1-1 में क्या देखा था? आइदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, या तो ऊपर ही चलता जाएगा पूरा एकदम बिल्कुल ऊपर तक, आखिरी तक, या तो फिर नीचे ही जाएगा पूरा।
then it is called as either increasing or decreasing function. But here this is not the case. ये वाला केस नहीं आया. क्यों नहीं आया? देखिए फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, फिर डिक्रीजिंग हो गया, फिर इंक्रीजिंग हुआ, फिर डिक्रीजिंग हो गया. सो इट हैज लोकल मैक्सिमम और मिनिमम. मतलब जैसे कि इसका यहाँ पर क्या हुआ, ये ऊपर बढ़ता गया, फिर मैक्सिमम आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर मिनिमम आ गया, फिर ऊपर गया, फिर मैक्सिमम आ गया, फिर नीचे गया, फिर मिनिमम आ गया. सो दिस टाइप ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर कॉल्ड एज लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम. तो अगर इस टाइप का फंक्शन होगा देन इट इज मेनी वन फंक्शन. ग्राफ से समझने के लिए, ठीक है. एंड दिस कैन बी आल्सो चेक बाय यूजिंग दिस dy by dx इक्वल टू 0. कहीं पर अगर dy by dx आपका 0 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है. यहाँ पर क्या हुआ, इसे ऊपर गए, फिर थोड़े टाइम के लिए सही, बट यहाँ पर फंक्शन रुक गया और फिर नीचे आया. तो ये एक आपको यहाँ पर टेबल टॉप वाला पॉइंट मिलेगा जहां पर dy by dx 0 होगा. तो ये मैक्सिमा मिनिमा का अगला एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स में. तो हमने डेरिवेटिव के 3-4 एप्लीकेशन तो ऑलरेडी स्टडी कर लिया आज तक, बातों में ही सही, बट हमने स्टडी कर लिया. कौन सा? फर्स्ट वन, dy by dx मींस रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. मान लीजिए x इज अ वेरिएबल कि मैं कितना घंटे पढ़ाई करता हूं. y इज माई रिजल्ट कि मुझे कितने मार्क्स आते हैं. ऑब्वियसली दे आर डिपेंडेंट, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x. जितने भी घंटे में पढ़ाई कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली मेरा रिजल्ट कम ज्यादा होता रहेगा. ठीक है, तो ये डिपेंडेंट है. तो यहां पर हम समझ सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज. अब चेंज अगेन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. चेंज मतलब पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, नेगेटिव चेंज भी हो सकता है. जैसे हम एक स्टूडेंट को पूछते करके भाई लास्ट टेस्ट में तो तेरा मार्क्स बस 20 में से 10 ही आए थे, अभी कुछ चेंज हुए कि नहीं? तो एकदम पूछो कि हाँ सर बहुत चेंज हो गया. कितना चेंज हो गया? 5 आ गया. चेंज तो हुआ ना. 10 से आपने क्या पूछा, चेंज हुआ क्या? तो 10 से 5 हो गया, चेंज तो हुआ है, पर इट इज अ नेगेटिव चेंज. 10 से अगर आप 15 पे जाते हो तो क्या हो गया? पॉजिटिव चेंज. तो चेंज नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चेंज होता है. तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज हम निकाल सकते हैं dy by dx. ठीक. और ये चेंज कब होता है? जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा तब. मतलब y शुड बी अ फंक्शन ऑफ x, देन ओनली इट इज पॉसिबल, अदरवाइज नहीं पॉसिबल. अब मान लीजिए मैं 4 घंटे पढ़ाई करता हूं तो बारिश थोड़ी सी होती है. मैं जब 6 घंटे पढ़ाई कर ले तो बहुत बारिश हो गया. ऐसे होगा क्या? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि बारिश आपके कितनी आप पढ़ाई करते हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है. उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है? आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं. सो दैट हैज टू बी कंसीडर. अब ये थोड़ा सा एक जनरल मैंने इसलिए डिस्कस किया ताकि डेरिवेटिव पे आपको पता हो जाए. तो एक तो हमने ये चेंज कर लिया रेट ऑफ चेंज मतलब dy by dx. दूसरा और डेरिवेटिव का क्या एप्लीकेशन है? स्लोप ऑफ ए लाइन. हमने डिस्कस किया था. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट dy by dx. ठीक है. फिर हमने और क्या डिस्कस किया? इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन. और चौथा हमने क्या डिस्कस किया? कांस्टेंट फंक्शन, मतलब dy by dx इक्वल टू 0. ठीक है. सो आइदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा. dy by dx इक्वल टू 0. ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग, इक्वल टू 0 होगा तो मैक्सिमा और मे बी मिनिमा. ठीक है. तो ये सारे एप्लीकेशंस हम डेरिवेटिव के आगे पढ़ने वाले हैं. तो डेरिवेटिव का थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दिया कि बहुत ज्यादा कुछ चीज है नहीं. तो वो एक रहता है बहुत से दिमाग में जो 11-12 कर चुके ना, और यार डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और वो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं. थोड़ा बहुत होगा भी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उतनी. क्यों? हमें आगे इंजीनियरिंग भी तो करना है. ठीक है. या फिर अगर आप 12 के बाद मैथ्स कंटिन्यू करते हो, एमएससी भी करते हो, बीएससी, मैथ तो रहेगा वहां पर. और वहां पर कैलकुलस पार्ट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है. और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं. मेरे साथ करेंगे तो सब एकदम ओके हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक. तो हमने यहाँ पर ये देखा फंक्शन की बात करते करते, क्योंकि फंक्शन की जब भी बात आएगी तो ये सारी चीजें आएंगी. ठीक.
क्योंकि इसके आगे जो कैलकुलस पार्ट होता है ना, जैसे आपने सुना होगा, फिर लिमिट्स होता है, लिमिट किसका लिमिट निकालना है आपको, फंक्शन का। डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन का। इंटीग्रल किसका, इस फंक्शन का। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन के साथ ये चीजें जुड़ी हुई है। तो हमने देखा मेनी वन फंक्शन मतलब जो कि वन वन नहीं है, मतलब मेनी फ्रॉम सेट ए आर कनेक्टेड टू वन ऑफ सेट बी, देन इट इज द मेनी वन फंक्शन and it is where either it has local maximum or local minimum, so it is a many one function. Next one, types of functions में polynomial function भी हो सकता है। polynomial function मतलब f of x equal to a0 a1x a2x square ऐसे an x raised to n तक। This is the polynomial function where a0 a1 a2 are what, they are real numbers, they are constants, they are real numbers, and n मतलब कि पावर ऑफ x इज नॉन निगेटिव इंटीजर, तभी ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। मतलब अगर फ्रैक्शनल पावर होगी तो पॉलिनोमियल नहीं हुआ। पॉलिनोमियल होने के लिए आपके पास इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, एंड दैट टू नॉन नेगेटिव, मतलब 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट वन इज रैशनल फंक्शन। अब जैसे रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर मतलब क्या, p of x upon q of x where q of x not equal to 0, definition of rational number. Similarly rational function मतलब g of x upon h of x where h of x not equal to 0, then this is a rational function, that is quotient of two functions, division of two functions. अगला अपना वही सिंगम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन। f of x क्या होता है, हमने इस तरीके से पढ़ा है, f of x equal to 1 for x greater than 0, f of x equal to 0 for x equal to 0, f of x equal to minus 1 for x less than 1, less than 0। ठीक है, तो ये तो हुआ सिग्नम फंक्शन। अब इस सिग्नम फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f of x equal to mod x upon x for x not equal to 0 and f of x equal to 0 for x equal to 0। दोनों का मीनिंग सेम ही है। कैसे सेम है समझिए, f of x की वैल्यू कितनी है, 0। कहां पर, when x is equal to 0, तो इधर भी वही है, जब x is equal to 0 होगा तो f of x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x not equal to 0 में क्या होगा, x not equal to 0 में दो केस बनेंगे। not equal to 0 मतलब 0 नहीं है, फिर या तो लेस देन 0 हो सकता है या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अगर लेस देन 0 हुआ तो ये मॉड x हो जाएगा माइनस एक्स और अपॉन x, तो माइनस एक्स अपॉन x मतलब माइनस 1। और जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा प्लस x अपॉन x, x से कट हो जाएगा, आंसर आएगा प्लस 1, क्योंकि मॉड x का जो आंसर होता है इट इज प्लस और माइनस x, तो प्लस और माइनस 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x greater than 0 या तो less than 0। So this is signum function। Next is logarithmic function। logarithmic function में दो टाइप्स के लॉग होते हैं, हमने डिस्कस किया है, नेचुरल लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में लॉग का बेस e होगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल नंबर 2.7183। कॉमन लॉगरिथम में लॉग का बेस 10 होगा। ठीक है, अब बाकी चीजें हमने लॉग के बारे में डिस्कस की है। यहाँ पर एक फार्मूला आया है, या फिर हम बोलेंगे कि ये हमें एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है। क्या एक्सप्रेशन है, लॉग x टू द बेस a रेज़ टू n। अगर हमें इसका सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए तो ये कैसे हम निकाल सकते हैं, विल यू चेंज ऑफ बेस इन, सो लॉग x हो जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में होगा लॉग ऑफ a रेज़ टू n। हमने क्या कर लिया, चेंज ऑफ बेस फार्मूला यूज कर लिया। a रेज़ टू n मतलब कि बेस उसका लॉग डिनोमिनेटर में और जो नंबर x है उसका लॉग न्यूमरेटर में। अब चेंज ऑफ बेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कुछ भी बेस ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर बेस लेता हूँ, लेट अस से न्यूमरेटर में मैंने बेस a ले लिया, डिनोमिनेटर में भी a ले लिया। तो अब इसका आंसर क्या होगा, सी दिस इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a न्यूमरेटर एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या है, लॉग ऑफ a रेज़ टू n,
जिसमें कि ये n नीचे आ जाएगा, तो इधर होगा n log a और बेस क्या है a। तो अब इसका आंसर क्या हुआ देखिए, डिनोमिनेटर में जो log a टू द बेस a है इट इज 1 और यहाँ पर n है डिनोमिनेटर में, तो हो गया 1/n इंटू log x टू द बेस a। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये वाला होता है, log x टू द बेस a रेज टू n इज इक्वल टू व्हाट, 1/n log x टू द बेस a। हम इस तरीके से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अनदर इज पावर फंक्शन। पावर फंक्शन मतलब f of x इक्वल टू x रेज टू अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू r। अब मैं तीन फंक्शन की बात करता हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन और पावर फंक्शन। तीनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, इट लुक्स सेम बट तीनों चीजें अलग अलग हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन में x की पावर है, ठीक है, x की पावर है n, बट दिस n इज व्हाट, इट इज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। यहाँ पर जो है x की पावर n है, ठीक है, n की जगह पर मैंने अल्फा लिया, k लिया, k भी हम ले सकते वट एवर, बट दिस नंबर बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स। मतलब यहाँ पर x की पावर फ्रैक्शनल भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, देन इट इज अ पावर फंक्शन। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है इट इज ऑफ द फॉर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन a रेज टू x, ठीक है, इस टाइप में होता है। अब ये है x रेज टू a, अल्फा को चलिए हम a बोलते हैं, दिस इज x रेज टू a, दिस इज a रेज टू x, दोनों चीजें अलग है। दिस इज पावर फंक्शन x रेज टू a, a इज अ रियल नंबर। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन a रेज टू x। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखिए x रेज टू a में जो बेस है वो वेरिएबल है, मतलब कि x है, और जो पावर है वो कांस्टेंट है, मतलब कि a है। और इसमें a रेज टू x में जो बेस है a है, मतलब कि कांस्टेंट है, और पावर में x मतलब वेरिएबल है। तो हमने वेरिएबल और कांस्टेंट अच्छे से डिस्कस किया था पहले वाले, जब हम फंक्शन स्टार्ट किए थे तभी हमने डिस्कस किया था वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो यहाँ पर दिस इज वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इसके जब फार्मूले आप देखेंगे, चाहे डिफरेंशिएशन में बात करें या इंटीग्रेशन में, बहुत आपको ऊपर कंफ्यूजन हो सकता है। तो चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। देखते समय आप खाली a x ऐसा नहीं देखेंगे, x रेज टू a रेज टू x, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। तो इनके डिफरेंशिएशन भी अलग होते हैं, इंटीग्रल भी अलग होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये दोनों अलग अलग फंक्शंस है। ओके फाइन, तो ये हमने पावर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिस्कस किया। इसके अलावा बाकी जो चीजें हम बोर्ड में डिस्कस किए हैं, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी इन सबकी, वो एक बार आप नोट कर लीजिए, चाहे मॉडुलस की प्रॉपर्टी हो, सिग्नम की प्रॉपर्टी हो, इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज हो, जस्ट वी विल गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, साइन कॉस टैन, इन सबके हमने ग्राफ भी देखे हैं। एंड डोमेन ऑफ रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। अब आपके पास जो बुक है इसमें एक टेबल दिया हुआ है, तो उस टेबल को अच्छे से समझिएगा, उस टेबल को एक बार लिख लीजिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, जेडब्ल्यू वाली बुक में डोमेन एंड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो टेबल आप एक बार समझ लेंगे। ऑलरेडी हमने उसमें से जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन रेंज हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर 1/x ये फंक्शन होगा तो उसका डोमेन रेंज हमने डिस्कस किया। सिग्नम का डोमेन रेंज हमें मालूम है। जैसे सिग्नम की बात करें तो सिग्नम का डोमेन क्या है, सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। x इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी होगा, ग्रेटर देन 0 भी होगा। सो सिग्नम फंक्शन की अगर मैं जस्ट एक डोमेन की बात करूं तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इस फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज मीन्स पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। और y की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है, देखिए +1, 0 और -1।
तीन ही वैल्यूज है, तो इसका रेंज हो जाता है -1, 0, +1। तो इस तरीके से डोमिनेंट रेंज हम किसी भी फंक्शन का नोट डाउन आप कर लेंगे टेबल से। क्लियर? अच्छा, सो यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? Now next topic is even and odd functions. So as in the case of number system, we are having some numbers are even, some numbers are odd. ठीक है, कुछ नंबर्स इवन होते हैं, कुछ नंबर्स ऑड होते हैं। वैसे ही कुछ फंक्शंस इवन होते हैं, कुछ फंक्शंस ऑड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो इवन भी नहीं होते और ऑड भी नहीं होते। ठीक है, नंबर सिस्टम में तो ऐसे नहीं है, either the number is even or the number is odd, but here either the function may be even or odd or none of even and odd। तो हमें देखना है कि इवन फंक्शन किसे कहेंगे, ऑड फंक्शन किसे कहेंगे। तो अगर हम बात करते हैं फंक्शन f of x की, तो दिस फंक्शन f of x इज एन इवन फंक्शन इफ f of -x इज इक्वल टू f of x। तो फंक्शन हो जाएगा इवन। अगर f of -x इक्वल टू -f of x होता है तो फंक्शन हो जाएगा ऑड। और अगर f of -x इज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस f of x, क्योंकि अगर f of -x प्लस f of x होगा तो इवन, माइनस f of x होगा तो ऑड, और प्लस और माइनस f of x ऐसा कुछ भी नहीं है, देन इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। लेट अस टेक विद सम एग्जांपल्स। इवन फंक्शंस कौन से होते हैं? f of x equal to x square cos x, x into sin x, all these are even functions। क्यों even functions हम इनको बोलेंगे? जस्ट चेक इट। अगर यहाँ पर f of x हमने ये वाले तीन फंक्शन लिए, फर्स्ट केस में f of x x स्क्वायर है, तो f of -x क्या हो जाएगा? f of x अगर x स्क्वायर है तो f of -x ये क्या होगा? x स्क्वायर। so x has to be replaced by -x, तो यहाँ पर हो जाएगा -x का स्क्वायर, और -x का जो स्क्वायर होता है इट इज x स्क्वायर, एंड दिस x स्क्वायर इज नथिंग बट अगेन f of x। ठीक, सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज इवन फंक्शन। सिमिलरली सेकंड वाला देखिए cos x है, अगर f of x cos x होगा तो f of -x क्या होगा? cos of -x। Now we know that cos of minus theta is cos theta, तो cos of -x हो जाएगा cos x, which is again f of x। So this is also a even function। Similarly you can check for this। Next, odd function क्या होता है? जब f of -x इक्वल टू -f of x होता है। यहाँ पर f of x इक्वल टू x क्यूब का हमने एग्जांपल लिया, तो इस केस में f of -x क्या हो जाएगा? -x का क्यूब। तो माइनस का जो क्यूब होता है इट इज माइनस, सो दिस बिकम्स -x क्यूब माइनस एज इट इज। ठीक है, -x क्यूब माइनस एज इट इज। पर x क्यूब मतलब क्या है? x क्यूब इज नथिंग बट f of x। तो अब यहां पर क्या हो गया? सी, f of -x इज इक्वल टू -f of x, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। सिमिलरली जो सेकंड है f of x इक्वल टू tan x, यहाँ पर अगर मैं f of -x निकालू तो हो जाएगा tan of -x। x has to be replaced by -x। Now we know that tan of minus theta is minus tan theta, so it will become minus tan x, which is nothing but minus f of x। So this type of functions are odd functions। तो आप समझ सकते हैं कि अगर x की पावर इवन होगी इवन फंक्शन, x की पावर ऑड होगी तो ऑड फंक्शन, sin x और tan x ऑड फंक्शन, cos x इवन फंक्शन। ठीक है, अब तीसरी चीज एक समझते हैं कि नाइदर इवन नॉर ऑड। ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जो इवन भी नहीं हो सकता ऑड भी नहीं हो सकता? जस्ट फॉर एग्जांपल f of x इक्वल टू log x है, तो जब आप f of -x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? log of -x, बट दिस इज नॉट डिफाइंड।
क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है, सो दिस इज मीनिंगलेस, दिस डजंट हैव एनी मीनिंग. So therefore you can say that this particular function is neither even nor odd. Similar जैसे देखिए sin x plus cos x, तो जब मैं यहाँ पर f of minus x निकालूंगा, it will become sin of minus x plus cos of minus x. Now sin of minus x minus sin x, cos of minus x cos x. ठीक, अब इस फंक्शन को आप f of x के फॉर्म में, ठीक है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को f ऑफ x के फॉर्म में नहीं लिख सकते. f ऑफ x क्या है? sin x प्लस cos x. तो यहाँ पर या तो दोनों निगेटिव चाहिए या तो दोनों पॉजिटिव चाहिए, जो कि केस यहाँ पर बनता नहीं है. सो दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस. अब कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं. अगर जो सिंपल छोटे छोटे आपके पास फंक्शंस है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेस टू 4, एक्स रेस टू 5, आपने चेक किया इवन ऑड, फिर आपको साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, इसके बारे में मालूम है. साइन एक्स अगर ऑड है, tan एक्स भी ऑड है, तो साइन एक्स का रेसिप्रोकल कोसेक एक्स ऑड होगा, tan एक्स का रेसिप्रोकल कॉट एक्स ऑड होगा, और कॉस एक्स का रेसिप्रोकल सेक एक्स इवन होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर सेपरेट फंक्शंस इवन और ऑड मालूम है, तो जब आप दो इवन फंक्शंस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इवन फंक्शन आएगा. इवन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी इवन फंक्शन होगा. दो ऑड फंक्शन अगर आप लेते हो, दो ऑड फंक्शन, तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी इवन फंक्शन आएगा. जैसे यहाँ पर देखिए, ये दोनों ऑड फंक्शन है, एक्स ऑड है, साइन एक्स ऑड है, और मल्टीप्लिकेशन जब आपने इसका कर दिया तो ये बन जाएगा इवन फंक्शन. क्यों? इसका आंसर क्या होगा? एफ ऑफ माइनस एक्स का माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स. ठीक है, माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स विच इज बिकम एक्स साइन एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स. तो ये इवन फंक्शन होगा. वैसे ही इवन इंटू ऑड या फिर ऑड इंटू इवन, it becomes a odd function. जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, दिस इज इवन फंक्शन, एक्स स्क्वायर इवन होता है, साइन एक्स ऑड होता है, लेकिन अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया then it will become a odd function. then इवन फंक्शन प्लस और माइनस ऑड फंक्शन अगर आप करेंगे, मतलब एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन की अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, then it becomes neither even nor odd. जैसे कि हमने ये वाला केस डिस्कस किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. तो ये जो फंक्शन है, ये वाला नाइदर इवन नॉर ऑड. साइन एक्स अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो साइन एक्स ऑड फंक्शन है, कॉस एक्स इवन फंक्शन है. आप इनकी एडिशन करिए या सब्ट्रैक्शन करिए, दोनों भी केस में ये हो जाएगा नाइदर इवन नॉर ऑड. सिवाय की प्रॉपर्टी हो गई. फोर्थ वन, जीरो फंक्शन. अब जीरो फंक्शन क्या होता है? f of x equal to 0. So is the only function which is even as well as odd. ये जो फंक्शन है f of x equal to 0, ये इवन भी है, ये ऑड भी है. क्यों? चेक करते हैं. अगर f of x equal to 0 होगा तो f of minus x क्या होगा? f of minus x is also equal to 0. ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा. Now this 0 is again equal to f of x, और इस 0 को मैं ये भी लिख सकता हूँ माइनस 0. 0 और माइनस 0 बोथ आर सेम, सो दिस इज आल्सो रिटन एज माइनस f of x. तो ये इवन भी हो जाएगा, ऑड भी हो जाएगा. नेक्स्ट, अब यहाँ तक हमने इवन ऑड फंक्शन देखे. अब कोई भी जो फंक्शन है, एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन. किसी भी फंक्शन को आप एडिशन मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन शो कर सकते हैं. ये कैसे दिखाया जाता है? f ऑफ x जो आपका फंक्शन है, इसे अब मुझे एक्सप्रेस करना है सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन. सो दिस f ऑफ x कैन बी रिटन एज हाफ इन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x प्लस हाफ इन ब्रैकेट f ऑफ x माइनस f ऑफ x. सो ये जो फर्स्ट
टर्म है इसका आंसर कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा जो कि इवन फंक्शन होगा, और जो सेकंड टर्म है इसका आंसर लेट अस से कैपिटल जी ऑफ एक्स व्हिच इज अ ऑड फंक्शन। तो जो गिवन फंक्शन था उसे हमने एक्सप्रेस कर दिया एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम अगर इस फंक्शन की बात करें sin x प्लस cos x जो कि इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, अब इस फंक्शन को अगर मुझे इवन और ऑड फंक्शन में एक्सप्रेस करना होगा तो मैं इस तरीके से करूंगा। ये वाला फार्मूला एफ ऑफ एक्स कौन से फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं हम, sin x प्लस cos x के लिए। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, this sin x plus cos x. So therefore f of x can be written as using this formula half f of x f of minus x half f of x minus f of minus x। ठीक, तो आगे लिखते हैं हाफ इन ब्रैकेट f of x plus f of minus x। तो f of x क्या है देखिए sin x plus cos x और प्लस क्या करना है एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पर हमने निकाला हुआ है एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकंड टर्म हाफ इन ब्रैकेट, सो प्लस हाफ इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स मतलब कौन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दिया हमने। आगे क्या है एफ ऑफ माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको मैं माइनस साइन अप्लाई कर देंगे हम, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स एंड दिस इज माइनस प्लस दैट इज माइनस कॉस एक्स। अब इसका आंसर देखिए कितना आता है। फर्स्ट टर्म में साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, सेकंड टर्म में कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, इधर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स 2 cos x अपॉन 2 मतलब हो गया cos x प्लस sin x प्लस sin x 2 sin x अपॉन 2 मतलब हो गया sin x। तो यहाँ पर जो cos x मिला आपको दिस इज इवन फंक्शन प्लस sin x मतलब ऑड फंक्शन, इवन प्लस ऑड यहाँ पर। So we can express any given function as a sum of even and odd function using this formula. Quite easy है, half इधर भी half, इधर addition इधर subtraction. Next one, periodic function. Periodic function क्या होता है? If let us say t is the period of a function which is greater than 0, then f of x plus t is equal to f of x minus t is equal to f of x. So that is called as a periodic function. हमने देखा था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऑल आर पीरियोडिक। ठीक है, कल परसों मैं एक वीडियो भी शेयर कर रहा था, उसके लिए मेरे स्टेटस पर अगर आप में से किसी ने देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डोमेन रेंज एंड पीरियड ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक विद सर्टेन पीरियड, sin x और cos x जैसे 2 पाई से पीरियोडिक होते हैं। ठीक, सो दीज आर कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल, आफ्टर सर्टेन पीरियड, देयर वैल्यू स्टार्ट्स रिपीटिंग, इट इज कॉल्ड एज ए पीरियोडिक फंक्शन। तो ये पीरियड प्लस टी भी हो सकता है, माइनस टी भी हो सकता है। टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो पीरियड हैज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। ऐसे ही sin रेज़ टू nx, cos रेज़ टू nx भी पीरियोडिक होते हैं विद पीरियड पाई, अगर n इवन होगा तो। अब इसके लिए कुछ टेबल है आपके पास बुक में, उसे एक बार आप स्टडी करिएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर हैविंग डिफरेंट पीरियड्स। सम नॉन पीरियोडिक फंक्शंस, कुछ फंक्शन जो होते हैं वो नॉन पीरियोडिक होते हैं, जैसे कि sin रूट एक्स, cos रूट एक्स, sin एक्स स्क्वायर, cos एक्स स्क्वायर। देयर आर वेरियस एग्जांपल्स व्हिच आर नॉन पीरियोडिक फंक्शंस। उनके वैल्यूज कई बार भी रिपीट नहीं होते आफ्टर सर्टेन इंटरवल। देन प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, यहां तक एक बार मुझे चेक कर, जस्ट अ सेकंड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। फर्स्ट वन, इफ f of x is periodic with period t, then a into f of x या फिर f of x plus a,
या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस ए, ऑल दीज फंक्शंस आर पीरियोडिक विथ पीरियड टी वेयर ए इज अ कांस्टेंट। अगर एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक होगा तो आप किसी से मल्टीप्लाई करिए या फिर इसको रिप्लेस करिए एक्स प्लस ए से, या फिर आप एफ ऑफ एक्स में प्लस और माइनस ए कर दीजिए। ऑल दीज फंक्शंस विल बी पीरियोडिक विथ टी। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, ठीक है, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, तो वैसे ही एफ ऑफ एक्स अगर 5 साइन एक्स प्लस 7 होगा तो इसका पीरियड भी होगा 2 पाई। साइन एक्स का पीरियड अगर 2 पाई है तो 5 साइन एक्स प्लस 7, इसका पीरियड भी 2 पाई होगा। सेकंड थिंग, f of x is periodic with period t, then f of ax plus b, now this is certain new term, f of ax plus b is periodic with period t upon mod a, ठीक है। अब ये जो फंक्शन होता है f of ax plus b, it is called as a composite linear function where this x is replaced by ax plus b। तो x का जो कोएफिशिएंट है a यहां पर आ जाएगा आपके पीरियड में, it is t upon mod a। For example, 5 sin of 2x plus 7 minus 10, तो इसका पीरियड कितना होगा? अब देखिए sin x का पीरियड होता है 2 पाई, sin x का पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ a, और वैल्यू ऑफ a कितनी है यहाँ पर? ax प्लस b के फॉर्म में, दिस इज 2x प्लस 7, तो a हो गया 2, b हो गया 7, तो हमें 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉड ए, मतलब मॉड 2 करना होगा जो कि ए की वैल्यू है। तो मॉड 2 होता है, तो 2 कट हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा पाई। तो अगर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है तो साइन 2x का पीरियड 2 पाई अपॉन 2 मतलब पाई। सम स्पेशल फंक्शंस, if f of x plus y is equal to f of x plus f of y, then this particular function f of x is equal to kx। अब ये जो हमने 4 पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं, एग्जैक्टली 4 पॉइंट से क्या उसको समझते हैं। 1 2 3 4, देयर आर 4 कंडीशंस, ठीक है। अगर f of x plus y equal to f of x plus f of y होगा, then it means f of x is equal to kx। फिर अब चेक करिए फर्स्ट वाला, अगर f of x kx होगा तो उल्टा भी प्रूव करेंगे, तो f of x plus y क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड f of x plus y, so it is what? k in bracket x plus y, क्योंकि हमने क्या किया? रिप्लेस दिस x by x plus y लेफ्ट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर भी x रिप्लेस हो जाएगा x plus y से। इसका आंसर क्या आएगा? k इंटू एक्स, के एक्स प्लस के इंटू वाई, के वाई। अब के एक्स मतलब कौन है? एफ ऑफ एक्स, तो यहां पर हो गया एफ ऑफ एक्स, प्लस अगर के एक्स एफ ऑफ एक्स है तो के वाई एफ ऑफ वाई होगा। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई होता है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा? के एक्स होगा। सिमिलरली सेकंड केस देखिए, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, सो दिस इज पॉसिबल व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है लॉग ऑफ एम एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट हुआ एडिशन में, इधर एडिशन कन्वर्ट हो रहा है मल्टीप्लीकेशन में, सो इन दिस केस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स। हम थर्ड वाला फिर एक बार प्रूव करते हैं, जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर? ई रेज़ टू एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होगा? फिर निकालते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, so it means what? We have to replace this x by x plus y, तो इधर e raised to x है तो x की जगह पर हो जाएगा x plus y। Now using laws of indices, this is a raised to m plus n, this can be written as e raised to x into e raised to y, लिख सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। e raised to x into e raised to y is e raised to x plus y,
अब e रेस टू एक्स मतलब क्या हुआ? देखिए e रेस टू एक्स इज नथिंग बट f ऑफ x, तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x इंटू e रेस टू y मतलब क्या हुआ? e रेस टू x अगर f ऑफ x होगा तो e रेस टू y f ऑफ y होगा। ठीक, सो दिस इज एडिशन कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो उस केस में फंक्शन होगा आपका e रेस टू x। फोर्थ वन f ऑफ x इंटू f ऑफ 1 बाई x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाई x। ऐसे अगर होगा देन f ऑफ x इक्वल टू x रेस टू n प्लस आर माइनस 1। तो इसे सेकंड और फोर्थ भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस। ठीक है, आज 15 मिनट ज्यादा हो गई क्लास, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमें कवर भी करना है। बाकी जो लोग प्रेजेंट नहीं है वो अपना कंप्लीट कर ले, उनको आप बता दीजिएगा। अब आज के लिए होमवर्क एक बार आपको बता दूं, कल का होमवर्क बहुत ज्यादा था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 44 थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, तो आज का होमवर्क थोड़ा सा कम रखते हैं ताकि कल का जो बचा हुआ होमवर्क होगा वो आप कंप्लीट करेंगे और फिर आज का थोड़ा सा होमवर्क। टुडे होमवर्क आप करेंगे एक्टिविटीज फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, सो दे आर जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिविटीज फॉर प्रैक्टिस, सो दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। और रिवीजन हम कुछ कर रहे हैं साथ में, तो रिवीजन आज से M2 का आप फर्स्ट चैप्टर ले लीजिएगा, M2 चैप्टर फर्स्ट ये रिवीजन में ले लीजिएगा, एंड एक्टिविटीज फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, आज के लिए इसमें कुछ 12 क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो रिमेनिंग कल का होमवर्क रहेगा वो भी करने के लिए टाइम आपको मिल जाएगा।